വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് 2024 സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് 10 പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് പാർട്ടിയും തലവൻ അസ്ദീൻ ഒവൈസി ഉൾപ്പെടെ 10 പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. BJP അംഗം നിഷാന്ത് ദുബൈ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. യോഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി ബഹളം സൃഷ്ടിക്കുകയും പാനലിനെതിരെ പാർലമെന്ററി വിരുദ്ധമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് BJP അംഗം അപരാധ സാരംഗി അഭിപ്രായപ്പെടുകയായിരുന്നു. കരട് നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് മതിയായ സമയം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ യോഗം ശക്തമായ എതിർപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. കാശ്മീരിലെ മതമേധാവി മിർവായിസ് ഉമർ ഫറൂഖ് ഖാനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ BJP ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച നടത്തി. ഈ ചർച്ചയാണ് ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സമ്മേളനത്തിനിടയിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ തർക്കങ്ങൾ സഭാ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. മിർവായിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വീണ്ടും യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായത്. തൃണമൂൽ അംഗം കല്യാൺ ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് അംഗം നസീർ ഹുസൈനും യോഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും സമിതിയുടെ നടപടികൾ ഒരു പ്രഹസനമായി മാറിയെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ക്ലോസ് ബൈ ക്ലോസ് പ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതികൾ പരിശോധിക്കാൻ ജനുവരി 27-ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗം ജനുവരി 30-ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 31-ലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഖഫ് ബില്ല് 2024 കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് 2024 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് റഫർ ചെയ്തത്. വഖഫ് സ്വത്തുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് 1995-ലെ വഖഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് JPC പ്രിയങ്കയും അംഗമാണ്. ഇതിനും വലിയ അംഗമായിരിക്കും JPC അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കാണാനിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ 10 എംപിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. किया गया है JPC की मीटिंग से, जो क्या वजह है सर? 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजर्न किया. अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए. लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल बिहार UP गए, तो आज हमने बुलाया. आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को आज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है. पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए. और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे. लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे. फिर हमने ये भी नहीं कि उनको निशिकांत दुबे जी ने दूसरी बार के बाद प्रस्ताव किया. एक बार हाउस में कोशिश की गई पूरा, उसका फिर हमने एडजर्न किया, फिर दोबारा एडजर्न किया. तो आखिर किसी को हमने बुलाया था और वो लोग इस मीटिंग को आज नहीं चलने देना चाहते थे. मीर वाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को हम नहीं सुनने देना चाहते. एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहां इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस हो पार्लियामेंट, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे. मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित किया. लेकिन सर आरोप ये लगाया गया है कि अपनी मनमर्जी से सारे शेड्यूल तय किए जा रहे हैं. एजेंडा चेंज किया गया, बैठक शिकायत करने जा रहे हैं. एजेंडा चेंज किया, तारीखें बदली गई. तरीके से आप एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ. हमसे लगातार लखनऊ में इन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सब ने कि मीर वाइज को बुला लीजिए. कल भी मैंने ओवैसी जी का फ़ोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए. तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे JPC के सामने. उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख. उनका कहना है कि
के बाद रात में सब नोटिस दिया 24-25 मीटिंग होगा. That in the two recent meeting, Mr. Raja and others requested the chair. No. We educate that. Adjourn for 10 minutes. Chairman adjourn meeting for 10 minutes. Chairman is proceeding this. Where is OIC? यस दादा. देखिए हम लोग का 21 तारीख तक 21 तारीख तक टूर था. टूर के बाद रात में सब नोटिस दिया 24-25 मीटिंग होगा. That in the two recent meeting, Mr. Raja and others requested the chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st. Within 3 days, it is not possible. He didn't hear us. Amendments we moved. And he asked, all of a sudden we have got the notice that by 22nd, 4 o'clock, amendment has to be given. We have given the amendment, no sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए 30-31 में लीजिए. देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना. कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, Subject change. सब्जेक्ट हैज बीन चेंज. पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25th में मीटिंग नहीं होगा. 24th and 27th वी हैव फोल्डेड द रिक्वेस्ट द चेयरमैन. ये देखिए 24 तारीख तो आज हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 27 तारीख नहीं हो गए. हम लोग को भी कमिटमेंट है. 30 से हाउस हो रहा है. हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को 27, 28, 29. कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा. उसका बावजूद भी हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो नहीं सुनना चाहता है. कोई एमपी तो बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को. अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है. He is dancing the tune of somewhere else. He is dancing on tune somewhere else. क्यों उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड. और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड. हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है. चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया. और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं. हम लोग को सोचता है हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है. समझे ना, कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेप्यूटी होम मिनिस्टर सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है. ये जेपीसी फार्स बन गया, लेकिन कंप्लीटली फार्स. कल्याण दादा, जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि 29 तारीख 29 सबसे सिंसियर में अपियर होने के लिए बुलाया गया है. क्या इश्यूज हैं सर? देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ के हवाले से बहुत से कंसर्न्स हैं लोगों के, उलमा के. तो उन कंसर्न्स को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं. एक डिटेल मेमोरेंडम भी हमने बनाया है. बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है उन पे हम बात करेंगे. और हम तवक्का रखते हैं कि जेपीसी की जो लीडरशिप है और जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं वो हमारे कंसर्न्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि ये मामला जो है वो डायरेक्टली मुसलमानों की फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है. वक्फ जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है और
इसमें जहाँ पे एक सोशल इसका इम्पैक्ट है, वहाँ पे इसका एक मजहबी इम्पैक्ट भी है, शरई इम्पैक्ट भी है। तो हम चाहेंगे कि इन तमाम इश्यूज़ पे हम खुल के बात करें और हम तवक्का रखते हैं कि ऐसा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा जिससे कि मुसलमानों में ये एहसास पैदा होगा कि उनको मज़ीद डिसएम्पावर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को एम्पावर किया जाए और उनके जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए, न कि जल्दबाजी में कोई ऐसा वन साइडेड फैसला लिया जाए जिससे मज़ीद मामलात और ताल्लुकात जो हैं वो उनमें खराबी पैदा हो। खास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या मसाइल हैं इतना देखिए, वक्फ के हवाले से क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ के हवाले से, चाहे मस्जिदों की हम बात करें, खानकाहों की हम बात करें, कब्रिस्तानों की हम बात करें, इसमें बहुत से ऐसे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है जो कि डायरेक्टली उन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उसमें कंसर्न जैसे वक्फ बाय यूज़र का जो एक पहलू है वो हटाने की बात की जा रही है। बहुत से अब मस्जिदें ऐसी हैं, कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनके कागजात नहीं हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो डीसी है जो है उसको पावर्स देंगे, वो जो है वो इस मामले में फ़ैसला लेगा। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इस वक्त ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक टेंशन भरा माहौल है, मस्जिदों और मंदिरों की बात हो रही है और वो एक टेंशन बन रहा है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे कि आपसी जो भाईचारा है उसको भी मैं कहूँगा कि वो ज़ख्म पहुँचे, नुकसान पहुँचे, बल्कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। अगर कोई चेंजेस लानी है, मान लीजिए जिसमें जो कि पॉजिटिव चेंजेस हों, वो हम खुद भी कर सकते हैं, उलमा बैठ सकते हैं, सोसाइटी बैठ सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी राय दे सकती है। लेकिन इस तरह से वन साइडेड अगर तरीका होता है, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक होगा। हम तो तवक्का रख रहे थे कि जेपीसी कश्मीर आएगी, वहाँ मिलेंगे लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो हम आए हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक मखसूस सी टीम आई है, लेकिन जहाँ पे हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसमें हमारे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लेह करगिल से भी जो है पूरा एक हमें सपोर्ट मिला है कि हम उनकी भी बात करें। तो हम तवक्का रखते हैं कि हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन ये भी आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया हो गया है, जिस पर हाथ रख देता है वो उसी का हो जाता है। इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर परिवर्तन लाने के हवाले से आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है। ये मामला कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एक दीनी मसला है, एक शरई मसला है। इसमें जो है तमाम की आपको राय लेनी है। मैंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस लानी है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहे हैं और बिल्कुल जो आप इस पे जो, क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है लोगों की तरफ से जो वक्फ है अल्लाह के नाम पर, उसमें जो मुसलमान हैं वो खुद इसके काबिल हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को रन कर सके। और हम ये महसूस करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इस सारे मामले से डिसएम्पावरमेंट जो है मुसलमानों को होगा, वो मज़ीद एम्पावर नहीं होंगे। जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, दरसगाह हैं, मदारिस हैं, इमाम बाड़े हैं, ये हज़ारों लाखों की तादाद में जो कनाल जो है वो जो है सदियों से लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आई थिंक हमने एक डिटेल मेमोरेंडम लाया है, उस पर हम डिस्कस डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।